Oh, hey everyone. Yes, guys, we all are very well aware about election हो चुके हैं. Okay, somewhere the state assemblies and the also the Puducherry, which is the union territory. Okay, and along with that there are some states are also there. So let's continue. So West Bengal, first of all, the Bharatiya Janata Party BJP made a history by winning the state for the first time after removing Trinamool Congress. एक्चुअली तृणमूल जो कांग्रेस है, टीएमसी जो है, ये लास्ट 3 टर्म से रूलिंग पार्टी रही है. डन, ठीक है. लेकिन अभी बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है इन वेस्ट बंगाल. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ इट्स कैपिटल, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. डन, ओके. So the BJP won 206 seats in West Bengal's assembly of 294. Means out of 294 there are 206 seats goes to the BJP. I'm just talking about the West Bengal. Done. While the TMC, whose CM Mamata Banerjee, so managed only 81 seats. Means out of 294 यहाँ पे only 81 सीट्स जो है वो मिली है टीएमसी की, जो अर्लीस्ट जो फॉर्मर सीएम रही हैं ममता बनर्जी, क्योंकि अब जस्ट रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं. सो डेफिनेटली अब बीजेपी रूलिंग सीएम आएंगे. सो लॉस्ट टू द बीजेपी शुवेंदु अधिकारी इन भवानीपुर. सो लोकेशन ऑफ द भवानीपुर से बीजेपी सीट से कौन थे? शुवेंदु अधिकारी. डन. लेट्स टॉक अबाउट तमिलनाडु. इट्स कैपिटल इज द चेन्नई. Now you guys will tell me in the comment section that earlier the Chennai was known by which name. Okay, it's your question for homework. So Tamil Nadu, while no party achieved a clear majority in Tamil Nadu elections, done Vijay Tamilega and the Vetri Kazhagam TVK, क्योंकि हमें पता है विजय Tamilaga Vetri Kazhagam TVK in short emerged as the single largest party with 108 seats out of 234 seats assembly. While the DMK earlier ruling party from the Tamil Nadu, mind the word. Okay, so DMK got only 59 seats. AIADMK managed 47. These are the different parties from the Tamil Nadu. Done. So AIADMK, DMK, TVK kind of. So AIADMK managed only the 47 and the Congress won 5 seats. Done. Let's talk about the Kerala. Kerala's capital is the Thiruvananthapuram. Done. यहाँ पे कांग्रेस की सीट आई है. कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, मीन्स कांग्रेस लेड यूडीएफ फ्रॉम कहाँ से? केरला. केरला's capital Thiruvananthapuram, whose CM Pinarayi Vijayan. Now guys, you will let me know in the comment section who is the current governor of the Kerala. Then so 63 seats of its name, it's the assembly of out of 140. Out of 140 there are the 63 seats. Done. Goes to the Kerala's ruling party, which is under the Congress led UDF, United Democratic Front. Done. And while the incumbent CPIM won just 26 सीट्स. देन सीपीआई के पास ओनली जो कि 26 सीट्स है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग विच इज़ अ पार्ट ऑफ द यूडीएफ, जिनको मिली है 22 सीट्स. यूडीएफ से कौन है? मुस्लिम से. मुस्लिम कहाँ से? ये यूडीएफ कहाँ? केरला. कहाँ से? केरला. ठीक है. इनको सीट कितनी मिली है? 22 मिली है. सो मोर और लेस विद रिस्पेक्ट ऑफ एग्जाम परस्पेक्टिव, सो ओनली द रफ डेटा नंबर आर इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ कीप इन योर माइंड फॉर द लॉन्ग टाइम रिटेंशन काइंड ऑफ. डन. नाउ talk about the Assam's CM Himanta Biswa Sarma. Done. Its capital is the Dispur. In Assam, BJP won 82 seats out of the total 126. Means BJP को मिली है 82 seats out of 126, while the Congress won just only 19 seats goes to the Congress party. Only 19 seats goes to the Congress party. Moreover, Congress Gaurav Gogoi lost from Johara to BJP's Hitendra Nath Goswami. So BJP से कौन है? हितेंद्र नाथ गोस्वामी. ठीक है. और कांग्रेस से कौन रहे हैं? गौरव गोगोई.
फ्रॉम कांग्रेस विद अ मार्जिन ऑफ ओवर 23K वोट्स। ठीक है, कितने थाउजेंड का वोट का मार्जिन रहा है? 23,000 वोट्स का यहाँ पे मार्जिन रहा है। डन। ओके, सो अगेन आसाम में भी अलॉन्ग विद वेस्ट बंगाल यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट ने मतलब यहाँ पे आ चुकी है। Now let's talk about the Puducherry, also known as the Pondicherry, ideas with respect of the Britishers time period. ठीक है, it is also the union territory of our country. It is important. Out of the 8 union territory, Puducherry is also the 1 union territory. Done. So in Puducherry, N. Rangaswamy led All India NR Congress. Done. Who is just ruling? NR Rangaswamy. ठीक है, All India NR Congress. I am just talking about the Puducherry, which is a part of the BJP led NDA. means यहाँ पे जो पुडुचेरी में जो गवर्नमेंट है NDA जो है, it is the BJP led party in the Puducherry. So made a comeback with 12 out of the total 13 seat, मतलब 12 out of कितनी 13 सीट्स हैं। डन। while the BJP got only 4, DMK, TVK and Congress got 5 to 1, मतलब DMK को मिली है 5, TVK को मिली है 2, while the Congress has only the 1 seat each. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी पुडुचेरी। डन। सो ये तो रिजल्ट्स हो गए, आसाम, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु। ओके, बट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट एवरीवन, हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अलग अलग स्टेट्स हैं तो इनके इलेक्शन कमीशन अपने अपने स्टेट्स के होंगे। ऐसा कुछ है क्या प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किस किस लेवल के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बिफोर दिस सेशन इट इज़ अबाउट द बिफोर 2 or 3 days in which I talk about the VVPAT, okay, and EVM, electronic voting machines. Then definitely I also talked about this particular slide in which article 324 to 329, ठीक है, इट्स कम अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एडल्ट सफरेज जो है आर्टिकल 326 है, मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज़ बीन कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज एंड ओवर द 18 he and she is the eligible for giving the vote. Okay, so here you can see election commission 324, ठीक है, जो डायरेक्शन एंड कंट्रोल करेंगे। देन ये 23-25, देन 326 अबाउट विच आई एम टॉकिंग राइट नाउ, द अडल्ट सफरेज। ओके, अबाउट 18 ईयर्स ऑफ द एज क्राइटेरिया। दैट पार्लियामेंट 326 है, ठीक है। 327 पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से बिलो लेजिस्लेचर्स होती हैं। क्या होती हैं? लेजिस्लेचर्स होती है। सो यहाँ पे आर्टिकल 327 इंपॉर्टेंट हो जाता है। डन। सो 320 एड विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट असेंबलीज। डन। सो नाउ 329 यहाँ बोलते हैं बार ऑन कोर्ट। मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में भी कि जब इलेक्शन की प्रोसेस रनिंग में है, वर्क इज़ ऑन द वे, तब तो कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ पर्टिकुलर इलेक्शन, then definitely if there is the clash between the parties and some of the misperception and the something mishap in that particular election process, then definitely high court को या जो भी with respect of state assemblies high court and with respect of our country level like the, so definitely ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मुद्दा हो जाता है कि जो भी फिर ये सारा वहाँ पे लीगल प्रोसीजर के थ्रू कवर अप किया जाता है। डन। इसलिए यहाँ पे मैंने किया है कि 329 डायरेक्ट बात करता है कि कोर्ट्स को बाहर है यहाँ पे। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा जो बजट है एवरीबडी, अभी जो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम ने जो अनाउंस किया, सो बजट जो वर्ड है नो वेयर एनी मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट अंडर आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइटिंग श्योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे ये मेंशन है। ओके, नाउ टॉक्स अबाउट द मनी बिल। आर्टिकल 110 टॉक्स अबाउट द मनी बिल। ठीक है। अब राज्यसभा के लिए क्या प्रोसीजर मनी बिल की? यू कैन गो थ्रू दी आर पॉलिटिक्स लक्ष्मीकांत। डन। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड विद रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 44, इट इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सभी विद रिस्पेक्ट ऑफ नो मैटर एनी रिलीजन सभी के लिए इक्वल लॉ रहते हैं, तो वो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हमारे DPSP के पार्ट है, पार्ट 4 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट हमारे कहाँ लाई करते हैं? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35। मैंने आर्टिकल 21 बताया है, ठीक है, मैंने इसको एज अ माशाअल्लाह आर्टिकल के नाम से लर्न किया था। सो ये 2017 के कौन से जजमेंट के बाद आया था? एवरीवन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर जजमेंट। डन। सो VVPAT ये सब हम बात कर चुके हैं हमारे EVM के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट दी सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नाउ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच इज़ अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके एवरीवन, what does it meant for the
एमसीसी सबसे पहले केरला के इलेक्शन में, ये 1960s के बाद केरला से इसको रिकॉग्निशन इतना मिला है। एमसीसी मतलब होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आपको रूल्स बेस्ड इंश्योर करना होगा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बाय द कंट्रोलिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। डन, मतलब इलेक्शन जो हो रहे हैं, इलेक्शन का शुरू होने से पहले एमसीसी लग जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे हमारे इलेक्शन होने वाले होते हैं। डन, सो now let's talk about its key point. तो comes into the force from the date election schedule is announced, मतलब जिस डेट को सपोज 15th of May को इलेक्शन है, तो इसके इलेक्शन के पहले इसको एमसीसी कंडक्ट करने का अनाउंसमेंट हो जाती है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324, जो बात करते हैं फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। डन, okay, let's talk about extra information about this. So applies to political parties, candidates and government authorities too. ठीक है, prevent earlier if I'm just not wrong, so IAS अभिषेक करके थे, तो I am not wrong, so केरला के कहीं के इलेक्शंस थे, तो उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें वहाँ से मतलब डिवाइड कर दिया था। तो ये बता रहा है कि यूपीएससी से आप सिलेक्टेड होते हो, कहीं पे आप सेक्रेटरी बनते हो या जो भी आपकी पोस्ट जाती है, तो आपको डिफरेंट डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सर्विस करने का आपको क्या मिलती है, पावर मिलती है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना, पर समवेयर इट इज़ ऑल्सो दी पावर इज़ नॉट दी परमानेंट। ओके, देयर आर रीजनेबल restrictions, if I would say like the reasonable certain restrictions are there, certain restrictions are also there. Done. So it is important to know about. Let's talk about prevent the misuse of the official power. कोई भी ऑफिशियल, ठीक है, कोई अथॉरिटी पावर का मिसयूज़ ना करें फॉर द इलेक्शन कैंपेनिंग। मेन प्रोविज़न, नो यूज़ ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर द कैंपेनिंग, गवर्नमेंट की जितने भी रिसोर्सेज हैं दीज आर फॉर द पब्लिक, ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट टू, सो इनका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। नाउ हाउ वुड वी दिस प्रोसेस वुड लीड, कि कैसे मिसयूज़ हो सकता है। सो रिसोर्सेज का, कैंपेन के लिए आप रिसोर्सेज मनी को फालतू वेस्ट कर रहे हो। नो अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू स्कीम्स ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन, ऐसा नहीं कि इलेक्शन जस्ट बिफोर द इलेक्शन आप क्या कर रहे हो कि आप कुछ भी स्कीम वगैरह लेके आ रहे हो, नहीं, तब से आप सो रहे थे क्या। आई एम जस्ट नॉट ह्यूमिलिएटिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग द ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर, जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज द रियलिटी ऑफ द आर powers authority who just rule and try to ruling our in country. ठीक है, सो नो ब्राइविंग वोटर्स, मनी नहीं देना, गिफ्ट नहीं देना, फ्रीबीज नहीं देना। इन फर्दर दिस लेक्चर आई ऑल्सो टॉक अबाउट द फ्रीबीज। सो नो हेड स्पीच और यूज़ ऑफ द रिलीजन, कास्ट फॉर वोट, ठीक है, हेड स्पीच नहीं देना किसी, क्योंकि आर्टिकल 21 डायरेक्ट बात करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। डन, सो इंश्योर, पर्पज़ क्या है, इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मेंटेन अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल पार्टीज़, के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड को मेंटेन करना है। डन, सो प्रोटेक्ट वोटर्स राइट। एग्जाम्पल, लुक, इफ़ अ गवर्नमेंट अनाउंसेस अ न्यू वेलफेयर स्कीम जस्ट बिफोर द इलेक्शन, डन, मार्क, गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है एक न्यू वेलफेयर स्कीम जस्ट बिफोर द इलेक्शन, तब से आप कहाँ थे, टू अट्रैक्ट द वोटर्स। वाई, क्योंकि सपोज दैट किसी को स्कूटी दे दी, है ना, किसी को स्कूटी, किसी को सेल फोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सो मीन्स वो ये मोरलेस किसी को बाइसिकल दे दी, सो ये सब क्या है, फ्रीबीज के अंडर में आते हैं। सो ऐसा नहीं करना है, इट में वायलेट द एमसीसी। तो अगर आप फ्रीबीज बांटोगे, अगर आप फ्रीबीज दोगे तो एमसीसी वायलेट हो जाएगा। डन, समथिंग आई ऑल्सो मेंशन अबाउट द फ्रीबीज। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीबीज। मैं थोड़ा यहाँ समझा देती हूँ। फ्रीबीज एमसीसी को वायलेट करेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या मेंटेन करनी है, ट्रांसपेरेंसी, आपको अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है, आपको पब्लिक के जो रिसोर्सेज हैं, पब्लिक के फंड, इनका मिसयूज़ नहीं करना है। डन, फ्रीबीज इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें आता है, फ्रीबीज में किसी को किसी भी स्टेट में पार्टी के थ्रू जो वहाँ पे लीडर्स खड़े हो रहे हैं एज अ मेंबर, सो कंप्यूटर देना, टैबलेट दे देना, ठीक है, सेल फोन्स दे देना, ठीक है, बाइसिकल्स दे देना, बाइसिकल, कुछ अमाउंट ऑफ कैश ले आना, अमाउंट ऑफ कैश ऑल्सो, उसके बारे में बात करना, तो ये सब होती है। तो आपको फ्रीबीज नहीं लाना है, क्योंकि वो डायरेक्ट एमसीसी को वायलेट करेंगे। सो एवरीवन, ये हमारा इलेक्शन के बारे में, एमसीसी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, वीवीपीएटी के बारे में, और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एंगल जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो ये सब हमारा
बिलोंग करता है इलेक्शन की प्रोसेस से, ठीक है। हाँ, थोड़ा ईवीएम के बारे में देखते हैं। ईवीएम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज टू दी कंडक्ट वोटिंग इन फास्ट एक्यूरेट रहेगा और टाइम आपका बच जाएगा, आपका टाइम भी सेफ हो जाएगा डेफिनेटली, ताकि सिक्योर वे में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी। इन इंडिया ईवीएम आर यूज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324, ठीक है। 324 अडल्ट सफरेज, राइटिंग इन शॉर्ट अडल्ट सफरेज। 328 किसका है? 328 और 327 पार्लियामेंट का कौन सा है? स्टेट लेजिस्लेचर का कौन सा है? लेट मी नो दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि अभी मैंने इन दी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन मैंने समझाया है। डन। सो ये सारे मेन पार्ट ईवीएम के बैलेट यूनिट होती है वेयर दी वोटर्स प्रेस बटन, बैलेट यूनिट में बटन दबाएगा कोई इंडिविजुअल भोला राम है, ये गया बैलेट यूनिट, इस पर मेंशन है ईवीएम में, इस बटन को दबाया, इसके पार्टी का साइन रहेगा इसके जस्ट फ्रंट में, टुई करके आवाज़ आएगी। ओके, आई एम जस्ट नॉट ह्यूमिलेटिंग एवरीवन, बस आई एम जस्ट मतलब चीज़ों को इनकल्केट कैसे करना है और कैसे फ्रेश माइंड के साथ मतलब हेडेक लेस